time all the participants would be able to join then. There are only 47 participants at present, and almost 100 will be there to join this session. Okay. Will we start the session or not? We should wait for DDG sir. Ma'am, just wait 5 to 10 minutes. He'll join. Okay.
वो ठीक है तुम्हारा? मैंने एक दो टीचर से बात की थी, वो कह रहे थे यहाँ एम के स्थान पे एन लिखा गया है वो। हाँ या Sorry, sir. Sorry. Good morning, all. Veena madam. Yes, sir. Hello. Yes. Welcome, sir. Veena madam is there. Yes, sir. Okay. Okay. I'm here. Okay. Good morning, all. I'm Ritesh Patel, Assistant Director from AISHE. New Delhi. That we our last workshop with Haryana, the first state to have workshop for this current survey year, and today we are having in the same sequence. And from the experience of last workshop, also we are going to discuss all your queries, and hopefully we'll have a very fruitful result. So first of all, I would like to thank Veena madam for conducting the workshop, and most importantly, welcome to all the dear nodal officers present today. In few minutes, and from our team, we have Shivam and Praveen ji, who are experts in the complete WebDCF form filling procedure. So let us begin. Veena madam, we may start with your words, and after few minutes, DD sir will join. He would summon for another 2 minutes post joining. Veena madam, Yes, sir. you may please let the workshop begin with your few words. Did you, sir, have joined? He will join in 10 minutes. Actually, he went to secretary office, so he is coming in another 10 minutes. He will be reaching. He had just been to Sastri Bhavan. As you know, we are in the finalization of our report of 2021. Within 2 to 3 days, our report will be released finally. So for that only we are having issues regarding the approval process. सर बेसिकली वर्कशॉप है प्रेजेंट हमारे पास नियर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे और फ्रॉम एवरी लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस
approximate 10 university nodal officer will be there, and standalone institution approximate 10, and near about 70 participants will be from colleges. Okay, this is a mix of all stuffs, and all are having basically problems related to programs related discipline or programs related problems are there, or regarding login problem mainly because we asked their problem from Google link, and we have received queries mainly discipline और जैसे कि हमने कल भी देखा था, मतलब पिछले वर्कशॉप में भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं, हेलो हेलो Yes. तो और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरीवन हैज और हर हिज क्वेरी। Yeah. जो हमने पार्टिसिपेंट्स को लाया वो मतलब अपनी कंसेंट से हर किसने ज्वाइन किया, ये नहीं कि हमने ये कहा है कि आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है। तो इसलिए जो भी हमने क्वेरीज लेनी है 1 by 1 हर किसी की वर्चुअली फ्रंट टू फ्रंट पे सॉल्व करना है, ताकि बाद में जो डेली हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे या मेल्स आ रही हैं जो हम मतलब देखा है हम टेक्निकली उसे टैकल नहीं कर पा रहे। तो जो पर्पस, जो हमारा मेन पर्पस है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का, सिर्फ यही है। सिर्फ ये नहीं कि जस्ट हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लिया, लोगों ने अटेंड कर लिया, जस्ट ये पर्पस नहीं है। It is basically to remove all remedies or queries which we had faced in the during 2021. जैसे कि हमने देखा था 2021 में काफी सारे लोगों ने डाटा भी गलत फिल कर दिया था, क्योंकि न्यू सिस्टम DCF मतलब न्यू सिस्टम ऑफ DCF में भी। तो अब लेकिन फिर इसके बावजूद भी सेकंड टाइम भी वो सब लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल पे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि मतलब कि थोड़े से टाइम में हम इनको कैसे अच्छी तरह से, आपने बताना है जस्ट कि कैसे आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या कैसे मतलब विद इन टाइम डाटा फिल पाए विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज। Here our purpose is not only to take their attendance. Yes sir. और मैं उम्मीद करूंगी सभी यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर से जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टैंड ऑन इंस्टीट्यूशंस के नोडल ऑफिसर से, कॉलेज के नोडल ऑफिसर से, वो डायरेक्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो दिल्ली से जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, उनके सामने अपनी जो प्रॉब्लम्स को रखें, ताकि ऑन द फ्रंट बिल्कुल जो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए और अपना टाइमली वो डाटा फिल कर पाए। ये सभी को एक्नॉलेज है 20 जनवरी हमारी लास्ट डेट है, ये 21 22 की सर्वे ईयर की फिल करने की। मे भी थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड हो सकता है आगे अगर कोई ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई तो, लेकिन फिलहाल तो ये डेडलाइन हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 जनवरी 2023 हमारी लास्ट डेट है डाटा फिल करने की। सर आ गए? हेलो सर, हैव जॉइंड अस? Yes, DD sir has joined us. So I would like to have him on chair. Good morning, everybody. Welcome sir. So it is again, I am very grateful to SNO Haryana, who has worked very hard and taken initiative and brought all of you together. See, this 21 from 2021, the AISHA survey has been the web DCF form. So more number of such workshops are required, have been necessitated to iron out the difficulties and to enable you to smoothly facilitate you to enter the data. So we will have a series of, we are having a series of online workshops this week. And then we are planning to have the offline workshop also, maybe in January. By that time, in the finishing stage, or you have the doubts, then it can be filled in front of us itself. So we will be coming, some of us will be coming like our assistant director and other people, Mr. Shivam and Praveen, etc. They will be coming personally to Chandigarh or wherever the Haryana government is fixing the meeting. So there it will be, we are planning to hold the physical workshop there so that the practical problems are ironed out. This is a, madam had requested for this query session so that
small difficulties and doubts that you are having will be cleared out. So I am grateful to Haryana government again to having held this workshop. This will facilitate the speedy data entry. And basically this time 21-22 we have because see the expectation on ASHE data is immense and it is getting more and more highlighted. So earlier what used to happen, those who of you are those of you who are say have been doing for last so many years, and some of you may be younger persons also who are doing recently. So earlier what used to happen is the there was a fixed format and it was being done and time limit was there. Now we are actually the expectation for the data is immense at the highest levels. So 2021 also, you as you may be aware that due to COVID and all these reasons we got delayed, and the new format web DCF format. Now we have to wrap up this 21-22 within a short period of time. So our the deadline that has been given to us is 20th of January that we have to complete the data entry in the data uploading in the web DCF. There will be some time for error correction and what do you say, these sort of some mistakes or technical glitches or this thing. But basically we have to wrap up everything by 20th January or at the most up to 31st January for the error correction also. So I would request that you you all get proactive and try to upload the data by the 20th January. As I said, in the month of January we'll be holding a closing session to facilitate you directly to do the data entry. And I'm enthused by the participation. I think more than 85 to 100 institutions are there. One more session we are having on, I think 7th also, 9th also. So with these few words, and I leave the floor to our Assistant Director, Ritesh Patel, Shivam and Praveen. And Madam, you conduct the meeting. Have you given this thing? Overall, Veena ji, aap hain isme? Yes, sir. So you suggested na that one 10-minute or 15-minute short presentation will be there on the different formats. तो वो पहले कर लें कि कैसे आप कंडक्ट स्टार्टिंग में बिगनिंग. हाँ, okay. So I leave the floor to you all. हम स्टार्ट करें मीटिंग. मैम, am I audible? हम पहले बेसिक्स ले लेते हैं जो जनरल क्वेरीज आ रही हैं इंस्टीट्यूशंस की, उसके बाद क्वेरी सेशन शुरू करते हैं. अभी मैम बेसिकली जो देखा जा रहा है, लॉगिन इशू सबसे ज्यादा आ रहा है इंस्टीट्यूशंस के लिए. हेलो, यस मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. मैम, फर्स्टली देखा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो उसका ये रीजन है कि हमने कुछ पासवर्ड पॉलिसीज चेंज करी हैं जो हमारे ओल्ड पोर्टल पे नहीं थी. तो इसलिए अभी जब डीसीएफ फिल करने जाएंगे सारे के सारे यूजर्स, तो हमने ये चेंज किया कि उनको एक बार रीसेट पासवर्ड करना ही पड़ेगा फर्स्ट विजिट पे, हर बार नहीं. जब वो फर्स्ट विजिट करेंगे 21-22 सर्वे को फिल करने के लिए, तो वो इंस्टीट्यूशनल यूजर पे जाके यहाँ से लॉगिन पे गए इंस्टीट्यूशनल यूजर, ये हमने सेपरेट कर दिया है. पहले सबका एक ही जगह से लॉगिन था,
अब अपने इंस्टीट्यूशनल यूजर को सेपरेट कर दिया, तो इंस्टीट्यूशनल यूजर पे जाके यहाँ से वो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, अपनी यूजर आईडी एंटर करेंगे, अपना आईशे कोड और वेरिफिकेशन कोड, तीनों चीज को एंटर करके वेरीफाई करेंगे यूजर। आफ्टर दिस अपने मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को वैलिडेट करेंगे थ्रू ओटीपी। उसके बाद वो अपना पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड है उसको सेट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये जितने भी यूजर्स हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वेब डीसीएफ को फिल करने के लिए 21-22 के लिए, तो उनको वन टाइम उनको पासवर्ड रीसेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, पासवर्ड रीसेट करना है पहले, तो ठीक है भाई। फर्स्ट विजिट में अब साथ के साथ कर लेंगे, अगर रूम मेरा खाली होगा ना। जी, अगर लॉगिन करने में किसी को भी कोई इशू आ रहा होगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है अपने फोन नंबर और आईशे कोड के साथ, चैट बॉक्स के अंदर पर्सनली मैसेज कर देंगे। तो हम आफ्टर दिस मीटिंग हम उनसे बात करके, ये कागज वाला एक हम करियोली साइड रख दिए करे, ठीक है। सर माइक म्यूट कर लीजिए। मैं तो काम के, मैं तो ये एक बार फुली साइड दे। अभी जनरल क्वेरी किसकी आई है बताइए एक बार, कोई भी एक यूजर। Hello. Regarding registration, any participants having any query? Login problem, credential login problem में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? किसी की ईमेल आईडी अपडेट या नोडल ऑफिसर चेंज हुआ है या फिर वो ओटीपी भेज रहे हैं तो वो ओटीपी उन्हें मिल नहीं रहा, ऐसा कोई इशू? एट द टाइम ऑफ वैलिडेटिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी उनको वो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है और वो करेक्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई यूजर है? Hello. So basically, करने कोई प्रॉब्लम वो अपना हेलो, नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ नमस्कार सर। सर जैसे लॉगिन करते हैं ना, लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ओटीपी आता ही नहीं सर। ओटीपी आता ही नहीं है। आप सर अपना आईशे कोड बताएंगे? हाँ जी, 16235। ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सर कॉलेज के स्टैंडर्ड में आप 16235 ये बताइए सर, अफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी है आपका जो इंस्टीट्यूशन है? नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड है सर। अच्छा, नेशनल काउंसिल फॉर होटल किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कि नहीं है? यूनिवर्सिटी से नहीं है सर। ठीक है सर, आपका स्टैंड अलोन है ना, कोड बताइए। 16235। 16235। सर आप रजिस्टर्ड, आपकी यूजर आईडी यही है, IHM यमुनानगर, देख लीजिए। हाँ जी, यही है सर, यही है सर। ठीक है सर, आप सेपरेटली एक बार मेल करिए हमें, ठीक है, या चैट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको आफ्टर दिस मीटिंग कांटेक्ट कर लूंगा। ओके सर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। ओके सर, नंबर बताएंगे सर अपना? सर आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा उसमें। कैसे करना सर मैसेज, किसी? सर चैट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में मैंने कर दिया सर मैसेज, MOE पे। मोबाइल नंबर भी डाल दिया मैंने। हाँ जी, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी भेजा और ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
इस तरह की प्रॉब्लम अगर और कोई फेस कर रहे हैं तो इस तरह से ही वो अपना मैसेज कर दें। चैट बॉक्स में पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। हेलो जी सर। सर, मेरा स्टैंड लोन इंस्टीट्यूट है, मेरा कोड है 1058 1058 स्टैंड लोन इंस्टीट्यूट है सर मेरा। एक मिनट सर। सर मेरे पास ना 2 ब्रांचेस हैं सेम नेम जी से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नाम से मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं। अब जब मैं इसको फिल कर रहा हूँ सर डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स में सर, अच्छा, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम की बात करें, हाँ सर बताइए। मेरे पास सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 2 ब्रांचेस है, वन इज फ्रॉम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज एंड अनदर वन इज फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड। जी दोनों की सर फीस स्ट्रक्चर अलग है, सेपरेट है मेरा सारा का सारा, बट सर मैं जब इसको सेव कर रहा हूँ तो ये मेरे को एरर दे रहा है डुप्लीकेट हाँ ब्रांच सर, का। बिल्कुल सर। देखिए ना, आप जो आपकी एंट्रीज हैं जो आपके सामने ओपन कर रखा है, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर, ये देखिए ना सर की हाँ सेम जी एंट्रीज सर, पड़ी शेयर हुई हो है रही ना, है वो तो आपकी स्क्रीन। डुप्लीकेट एंट्री बोलेगा ही बोलेगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम, ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप कैटेगरी, ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप नेम, दोनों सेम है। लास्ट ईयर सर क्या था कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एक ऑप्शन हमने दे रखा जो एडिटेबल फील्ड थी, पर इस बार वो नहीं है। यस सर। तो सर मैं इस केस में कैसे करूँ आपको फिर सर इसको मैं? कंबाइन करना पड़ेगा ना इनका। हाँ सर, देखिए इस केस में है कि आपके पास सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी है और वो है, तो यहाँ पर प्रोग्राम का तो नाम चेंज हुआ नहीं है, प्रोग्राम तो आपका एक ही है। ओके तो आप यहाँ पर जी सेल्फ सर। फाइनेंसिंग और जो जनरल करते हैं इस कंडीशन में आप वहाँ पे बोथ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब प्रोग्राम नाम सर बार बार रिपीट नहीं होगी, एक प्रोग्राम का एक ही बार एंट्री होगा ओके सर। और यहाँ तो सर मैं इसको फिर कैसे करूँ सर, मेरे पास क्योंकि सर आप प्रोग्राम नेम एज इट इज रखेंगे, जब सेल्फ फाइनेंसिंग और जो गवर्नमेंट एडेड का जो है दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर ऑप्शन बोथ देंगे टाइप में कि प्रोग्राम आप कैसे रन करते हैं, तो यहाँ पर फाइन बोथ ऑप्शन देंगे कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी रन कराते हैं और जो गवर्नमेंट एडेड है उसका भी रन कराते हैं। तो ऑप्शन ओके। यहाँ पर सर बोथ है, तो सर जब मैं स्टाफ सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं सर, आप एक बार उसको ध्यान देंगे दिक्कत नहीं होगी। हाँ नहीं सर वो तो ध्यान दे दिया मैंने, वो मतलब हाँ यू मीन सर, टू से भी आई हैव टू कंबाइन एक बोथ दिस प्रोग्राम सर कोर्सेज। एक ही बार एंट्री होगी, चाहे तो उसमें सर सेल्फ मैं फाइनेंसिंग हो या सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं हो। तो सर फिर जब मैं इसकी एंट्री करूँ फिर 120 हाँ सीट्स सर, लेके उसको चलूँ सर फिर मैं 120 इसमें? सीट लेके चलेंगे सर। तो सर मेरे पास तो जो सर फैकल्टी का रिकॉर्ड है, फैकल्टी का रिकॉर्ड भी फिर एक ही डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आएगा। सर फैकल्टी प्रोग्राम वाइज नहीं होते हैं, फैकल्टी नहीं सर, स्टाफ बोलिए ना उसे। वो उसको स्टाफ बोलिए सर। फाइन सर, स्टाफ हो हाँ गया सर, सर वो मेरा। स्टाफ को प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है सर। तो सर मैं उसको दिखाऊंगा तो तो सही किस स्टाफ डिपार्टमेंट में में दिखाओगे ना करेगा सर ये? उसको डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में दिखाएंगे ना सर कि आपके इंस्टीट्यूशन में कितने टीचर हैं। ये तो नहीं ना दिखाएंगे कि आपके प्रोग्राम में कितने टीचर हैं। ओके। ये सर अब तो ये देखिए मतलब सर, टीचिंग प्रोग्राम स्टाफ सर मैं इंफॉर्मेशन अपने में हम सिर्फ ड्रॉप डाउन जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम का कोई लिंकेज है ही नहीं। फाइन सर, यहाँ पे देखो सर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग 80 डाला हुआ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने सिंपल डाला नहीं हुआ सर, सर यहाँ वहाँ पे। पर सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डालिए और सारे टीचर का नाम नहीं तो मेंशन मैं सर करिए। इनको चेंज करूँ सर, फिर मैं इनको फिर यहाँ पे जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग 80 डाला हुआ है सर मैंने यहाँ पे, हाँ सर, उसका एक ही स्टाफ अलग डालिए, है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टाफ मेरा अलग है। डिपार्टमेंट को मॉडिफाई कीजिए सर। डिपार्टमेंट मॉडिफाई करिए और सर उसको करिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के टीचर हैं, जो भी है उनको आप ऐड करिए सर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज टीचर हैं और उनका डिजिग्नेशन होता है, ना कि कोड टीचर क्या प्रोग्राम स्टडी करवा रहे हैं वो सर मेंशन नहीं करना है सर। नहीं सर, स्टिल सर आई एम नॉट गेटिंग, मेरे को समझ आ रहा है। तो देखो ना एक ही है 7th और 8th मैंने डिपार्टमेंट अलग अलग करे हुए हैं सर मैंने यहाँ पे। सर तो ये आप अलग किए हैं ना सर, ये कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट नहीं ना ऑथराइज आप क्या कि नहीं, हमारा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप इंस्टीट्यूशन को पास करवाएं क्रिएटेड है। हाँ जी सर, ये मेरा ही क्रिएटेड है हाँ सर सर, ये। आपका क्रिएटेड है तो आपका क्रिएटेड को कंबाइन कीजिए सर। तो मतलब सर अब जो मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की एंट्री करूँ वो सारी मैं एक ही सर, डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स करूँ के ये सारी की डिपार्टमेंट सारी। से कोई लिंकेज नहीं है। स्टूडेंट का कोई डिपार्टमेंट, स्टूडेंट का सिर्फ प्रोग्राम से लिंकेज है सर। प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करिए सर, उसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
सर तो वही तो कह रहा हूँ ना, फिर मेरे पास प्रोग्राम तो मेरे पास दोनों, मेरे पास प्रोग्राम, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक प्रोग्राम हो गया। हाँ सर, तो 120 स्टूडेंट्स की जो एंट्री करनी है मुझे, वो हाँ एक ही सर, प्रोग्राम के अंदर एक ही, करनी है। हाँ एक ही बार करनी है सर, वो एक ही प्रोग्राम है सर, उसको डुप्लीकेट नहीं करना, उसको कंबाइन नहीं करना है सर। हाँ, तो मतलब एक ही हाँ, सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक ही ब्रांच लेके चलूं, उसी के स्टाफ की मैं एंट्री करूं और उसी के हाँ जी स्टूडेंट्स की सर। फिर मैं सर एंट्री करूं दोनों सारी की चीज सारी। को कंबाइन मत कीजिए ना। जब आप स्टाफ इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं उसका लिंकेज कोई प्रोग्राम से नहीं है, और जब आप एनरोलमेंट फिल कर रहे हैं उसका कोई डिपार्टमेंट से लिंकेज नहीं है। यहाँ आप देखिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप फिल करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ कोई डिपार्टमेंट का कोई लिस्टिंग का ड्रॉप डाउन यूज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन आएगा मेरा, एक बार क्लिक करना अभी सर सर इस आपका पे प्रोग्राम डिसिप्लिन लॉग पे। नहीं है ना, प्रोग्राम जब आप फिक्स कर लेंगे तभी तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो करेगा कि आपके इतने प्रोग्राम्स हाँ हैं। सर, ये भी ना सर बड़ा इशू हो जाता है सर, ये भी ना फिर सर कोई एंट्रीज एक करने के इशू लिए नहीं ना, है सर, ये जब इशू तक आप क्रिएटेड है। आप सर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम का कोई रिलेशन एक साथ नहीं है सर, आप उसको एक साथ कंबाइन नहीं करिए कि हमने 4 डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं तो चारों में अलग अलग प्रोग्राम रन कराएंगे, क्योंकि आपका प्रोग्राम एक सर मेरा डिप्लोमा, ठीक है, और उसी एग्री डिप्लोमा सर। को सर सर मेरा आप रन AICTE का कराइए सर। मेरा सर AICTE का कोड जो है दोनों प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग है। मैं सर दोनों प्रोग्राम्स का सर AICTE के कोड के अकॉर्डिंग हम डेटा नहीं ले रहे हैं सर, डेटा हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आपका प्रोग्राम डिप्लोमा एक ही है ना कि 2 अलग अलग हाँ जी डिप्लोमा सर। है? हमारे क्या डिप्लोमा एक ही है, और वो डिप्लोमा आपका जी इंजीनियरिंग सर, एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉड ग्रुप में है, तो उसको सर फिल करिए। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं फिल करता हूँ सर। अगर कोई मेरे को हाँ इशू सर, आता है सर, डेफिनेटली आई हम विल अवेलेबल हैं, टॉक टू यू पीपल आप सर। कभी भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। Excuse me, sir. जी मैम। Excuse me, sir. Am I audible, sir? हाँ यस मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू मैम। Sir, actually मैं DDR कॉलेज से DDR कॉलेज से आईसी कोड क्या है मैम आपका? मैम AICTE कोड क्या है इंस्टीट्यूशन का? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है थोड़ा सा। कॉलेज है हमारा, और फार्मेसी कंपल्सरी नहीं है। मैम आपकी आवाज मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रहा आपका। हेलो मैम। और कोई इंस्टीट्यूशन? हेलो, जब आप जी जी सर बताइए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव से, एशिया कोड C28137। 28137 ओके सर। सर मेरे पास जो है ना 2 कोर्सेज आपके हैं, बीकॉम ऑनर्स और बैचलर इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ठीक है सर, बीकॉम ऑनर्स है ना, प्रोग्राम्स में अवेलेबल नहीं है। बीकॉम ऑनर्स नहीं है? बीकॉम ऑनर्स नहीं है, बैचलर इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर था सर ये? लास्ट ईयर था ये? लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर जैसे बीकॉम हम ऐड करते थे, बाद में ऑनर्स की ऑप्शन थी, तो ऑनर्स करके हम उसको कर देते थे। लेकिन इस बार जैसे ही आपका मैंने देखा इसमें है नहीं, ही नहीं। लास्ट ईयर तो सर और जब डिसिप्लिन मैं सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बॉक्स हमने दे रखा था, आप वहाँ पे मॉडिफाई कर लेते थे और ऑनर्स करके अपना एनरोलमेंट डाल देते थे, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार वो नहीं है, इस बार उसका डुप्लीकेट एंट्री शो कर रहा है। हाँ सर, तो हम प्रोग्राम ऐड करवा देते हैं। सर प्रोग्राम का नाम क्या है सर? बीकॉम ऑनर्स, और दूसरा प्रोग्राम है बैचलर इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BTTM। ओके सर। सर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है सर? स्पेशलाइजेशन आपका कोर्सेज आपका होता है, और बीकॉम पास जनरल कोर्स आपका होता है। अच्छा सर, तो सर एक बार थोड़ा सा हमें यूनिवर्सिटी का लेटर सर आप भेज दीजिएगा बीकॉम ऑनर्स का, उसको सर हम देखें, क्योंकि सर वो UGC में तो हमने मिला नहीं, इसका हम इसको ऐड नहीं किया है अभी तक। हेलो, हाँ सर। हाँ, बीकॉम ऑनर्स का और यूनिवर्सिटी का स्पेशलाइज लेटर आप हमें सर प्लीज मेल कर दीजिए। हेलो,
हेलो हाँ जी। सर, बीकॉम ऑनर्स का यूनिवर्सिटी का स्पेशलाइज लेटर हमें कर दीजिए कि हम बीकॉम ऑनर्स रन करवाते हैं, प्लीज इसको ऐड करने के लिए। हाँ, बीकॉम ऑनर्स और बैचलर इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। हाँ सर, उसका डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन ग्रुप क्या है, यूनिवर्सिटी का लेटर प्लीज आप हमें मेल कर दीजिए सर, जितना जल्द हो हम मैं इसको मेल ऐड करवा लें। मैं मेल करवा देता हूँ। जी सर। हेलो ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है अकेले मेरे की, यहाँ पर मेरे साथ और भी इंस्टीट्यूशन जी सर, आपके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हम आपने ये तो कह नहीं रहे हैं, इसी कारण तो हम यूनिवर्सिटी का लेटर मांग रहे हैं कि सर वो दे दीजिए हाँ, ताकि हम उसको ऐड करवा दें। वो मैं मेल कर देता हूँ आपको। जी सर। हेलो जी मैम। सर, सॉरी एक्चुअल में बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। जी मैम। जी मैम बताइए। सर वो एक्चुअल में मैं फैकल्टी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रही थी, वो एडिटिंग नहीं हो रहा है फैकल्टी हमारा मैम, उसमें। फैकल्टी मैम आपका कॉलेज स्टैंड अलोन है कि यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है सर हमारा। नहीं मैम, आपका आईसी कोड क्या है पहले बताइए। सर C59996। तो कॉलेज के लिए मैम हमने फैकल्टी का ऑप्शन दिया ही नहीं है। सर आप बट स्टाफ लास्ट की बात ईयर कर रहे हैं ना, टीचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं ना? या सर बट लास्ट ईयर वी हैव अपडेटेड सर। ओके, तो क्या इशू आ रहा है मैम? एक बार एक्चुअल में सर जो स्टाफ न्यू ज्वाइनिंग है उनको अपडेट करना है ना, उसको एडिट करना है, हमने ऐड करना है, और जो छोड़ जी, गए उनको डिलीट करना है, तो उसी के तो रिगार्डिंग डिलीट पूछना, तो तो वो मैम किसी लोग को दिखा करना ही रहे नहीं हैं। है ना मैम। मैम डिलीट किसी को नहीं अच्छा करिएगा। नहीं करना। हाँ, उनका लेफ्ट हाँ ऑप्शन एक है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक वो पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप डाउन में स्टेटस आप चूज कीजिएगा लेफ्ट। एक बार मैडम अच्छा, ऐसे बट सर वो लोग शो कर रहा है एक मिनट और ऐड मैम, भी नहीं हो रहा उसमें हाँ कोई भी कोड फैकल्टी का बताइए अपना डाटा। एक बार। 5 मैम ऐसे को C59996 सर, C5 ट्रिपल ओके C59996। जी। हाँ जी सर। यहाँ देखिए लॉक अनलॉक स्टेटस वाले पेज से कि आपने कोई भी टैब को सेव लॉक नहीं कर रखा। और जैसे कि मैं पिछली यस मीटिंग में सर। भी मैंने सबको बताया था, देखो सारे इंस्टीट्यूशन के लिए है एक बेसिक सी चीज कि जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, पहली चीज तो आपको पासवर्ड रिसेट करना ही करना है, ये मैंडेटरी है सिर्फ फर्स्ट टाइम विजिट के लिए। ठीक है, आपका पूरा का पूरा डीसीएफ इनेबल्ड नहीं होगा जिस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाके पहले फिल करना होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेव लॉक करेंगे, उसके बाद ही अदर टैब आपका एप्लीकेबल होगा, तो उसमें एडिट करेंगे या नहीं करेंगे। पूरा का पूरा सर लोग साथ हाँ साथ जी करना बिल्कुल। है। ये आप 10 बार देखिए, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ कि जैसे बेसिक डिटेल का टैब है, अभी आप सारे के सारे यूजर ये देख लीजिए कि अभी डिटेल्स और प्रोग्राम और ये टीचिंग स्टाफ इन्फॉर्मेशन अभी सारा का सारा लॉक्ड होगा। ये दिस पेज इज लॉक्ड साफ साफ दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आप हाँ जी सर। इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स का, तो जब तक हमारे डिपार्टमेंट्स एक जगह लॉक नहीं होंगे तब तक ये इनेबल नहीं होगा। तो पहले आपको डिपार्टमेंट फिक्स करने पड़ेंगे और डिपार्टमेंट पहुंचने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि बेसिक डिटेल्स को आप सेव करेंगे, देन इसे लॉक करेंगे। और लॉक अनलॉक प्रोसेस आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, पर वन गो के अंदर जब आप जा रहे हैं तो आपको सारे टैब्स लॉक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लॉक अनलॉक वाले पेज पे जाएंगे और ये एक्शन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे जो लास्ट कॉलम है हमारा। तो कोई अगर टैब आप लॉक कर देते हैं और बाद में आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप यहाँ से जाके इसे अनलॉक कर सकते हैं। फिर आप विजिट करेंगे तो आपका अनलॉक दिखाएगा। मैम ये देखिए ना कि आप यहाँ से मैं इसे सेव कर रहा हूँ और लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ बेसिक को नहीं करना। मैंने आपको क्या बोला कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आप पहले फिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन वहाँ यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है सर। तो जो डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट जब आप सेव करके लॉक कर देंगे, ये आपकी टेबल हो जाएगी उसमें एडिट करने अब के मैम लिए। टीचिंग स्टाफ के अंदर कहीं भी दिस पेज इज लॉक नहीं शो कर रहा है ना। ठीक, तो आप इसको आप अपडेट कर लीजिए। और यहाँ अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इन 80s एंट्री के अंदर, जो भी 18 एंट्री है इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, तो सिंपली आप सेव करके ये सारे के सारे फील्ड जो है रोज जितनी भी है सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी 21 22 के लिए, और ग्रीन टिक बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप इसे लॉक कर सकते हैं अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। अदरवाइज अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप सिंपली इसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं, है ना। ओके। और नॉन टीचिंग को तो ये दिखा रहा था सर बिना सेव लॉक किए भी। मैम नॉन टीचिंग के अंदर डिसिप्लिन सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन नहीं यूज कर रखा ना हमने।
ओके, हाँ, इसका ठीक है लीकेज सर। नहीं है किसी और से। ओके सर। जी, बात हेलो। करें कोई स्टूडेंट अल्टरनेट? एनरोलमेंट, बात करें स्टूडेंट हाँ, एनरोलमेंट की, तो जब भी आप स्टूडेंट एनरोलमेंट पे आएंगे, जब तक आप प्रोग्राम लॉक नहीं करेंगे तब तक एनरोलमेंट सर प्लीज रिपीट इट। उसमें शेयर करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो यस सर, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे हमारा डिप्लोमा था, स्टैंड लोन में इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है हमारा, और जी। अभी एक नया प्रोग्राम मिला है, वो हमें ऐड करना है, तो क्या हम स्टैंड लोन में ही करेंगे, कॉलेज में नहीं सर, दोबारा से ऐड आपका करें? जो प्रोग्राम मिला वो यूनिवर्सिटी से अटैच है, हम्म। हाँ, तो यूनिवर्सिटी आप से है। एक मेल करिए यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन लेटर के साथ कि आपका इंस्टीट्यूशन को स्टैंड अलोन से कॉलेज में अपग्रेड कर दिया जाए। उसके ओके, बाद सर फिल करिए सर, पहले आप तो इंस्टीट्यूशन जो को कोड अपग्रेड रहेगा करवा सर, कोड लीजिए। तो वही रहेगा ना फिर ऐसे नहीं का? नहीं सर, कोड आपका चेंज होगा सर इस केस में। अच्छा, इस केस में चेंज हो जाएगा। हाँ सर, आपका इंस्टीट्यूशन अपग्रेड हो जाएगा और आप फिर कॉलेज लेवल में आ जाएंगे। ओके। सेकंड सर, एक हमारा जो दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसमें फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, तो ओटीपी नहीं आ रहा, सर क्योंकि आप, फर्स्ट टाइम उसको अच्छा, ओपन जो कर रहे हैं। रजिस्टर्ड, पीछे पीछे सर हमने रजिस्टर्ड डीसीएम। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ठीक है, हाँ जी। उसके बाद भी ओटीपी नहीं आ रहा? जी जी जी, शायद बिजी हो सकता है सर्वर, इस वजह से नहीं आ नहीं रहा सर, होगा। नहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं कोई है सर। इशू नहीं है सर। आप एक बार आईसे कोड के साथ सर वो मेल कर दीजिए अपना पर्सनल नंबर, हम आपसे ओके कांटेक्ट कर लेंगे सर। ओके चेक सर, बॉक्स में मैसेज कर दीजिए सर। ओके सर। ओके। एनीबॉडी? यस सर, एनी अदर क्वेरी? यस सर, यस सर। सर मेरे पास मैं S1058 से ही बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज एस वन ओपन जीरो करेंगे सर आप फाइव एट मेरा ही सी दोबारा से। जी सर। S1058 सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? सर जो मैं आपको ब्रांचेस की बात बता रहा था ना, मेरे हाँ पास सर ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है सर मेरे पास। वहाँ पे 2 ब्रांचेस है मेरे जी पास। सर। तो वहाँ पे सर वो वर्क कर रहा है मेरे पास। वहाँ पे कोई इशू नहीं दिखा रहा वो। हाँ बट मेरे पास सर सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के केस में ही सर वो इशू दिखा रहा है मेरे को वो। सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही है ना, उसमें अलग अलग बाइफरकेशन नहीं है सर। तो सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड आपको एक ही ब्रांच में ऐड करने होंगे सर। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के केस में नहीं हो रहा सर। वहाँ पे मेरे पास दोनों सेम ब्रांचेस हैं सर मेरे पास। सेम है विद सेल्फ फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट एडेड सर। अगर सर मेरा आप ओपन करके देख पाएं सर, तो 6th और 7th नंबर पर सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है मेरे पास। एक मिनट सर। केस डेस 1058। S1058 सर। हाँ सर, बताइए सर। ये डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। सर स्क्रीन भी शेयर कीजिएगा सर प्लीज। हाँ सर, बताइए सर। सर इसमें सर अगर हम प्रैक्टिस देखें तो करनी है, कर 6th और लो 7th चुपचाप। नंबर पे सर, हाँ 6th और 7th नंबर पे सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखो सर सेम है। द डिफरेंस इज ईयर ऑफ स्टार्ट। हाँ एक सर 2014 में स्टार्ट हुई है, prior to 2010 है। जी जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही एरर दे रहा है सर वो। सर, वो जब रिजॉल्व करेंगे तो इसमें भी एरर देगा सर। ओके, तो मतलब मेरे को जो है ब्रांचेस को अपनी को सेम ही करना पड़ेगा मेरे सर वो को। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है ब्रांचेज ना, जो इतने जो प्रोग्राम रनिंग है वो ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग ही सर वो आएंगे। चलो ठीक है सर। सर मैंने पर्सनल भी मैसेज किया, आप प्लीज सर मेरे को थोड़ा सा रिप्लाई कर देना, ये आपको सो सर दैट इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सर कभी भी दिक्कत होगी सर, आप तुरंत मेल करिए सर, कोई इशू नहीं है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर प्लीज कोई अल्टरनेट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कोई मैम इमरजेंसी आज हो इस मैम हाँ आज साइट पे 2 मोबाइल नंबर हम अपडेट कर देंगे, प्लीज उसमें हाँ, कांटेक्ट कर ठीक लीजिएगा। ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जी मैम। कंसर्न। थैंक यू सर।
नेहा गर्ग मैम का एक क्वेश्चन है कि उन्हें ब्रीफ कर दिया जाए सारे प्रोसेस से, ठीक है। नेहा मैम अपना आईसी कोड बताइए। नेहा गर्ग मैम। Sir, it is C22420. C22420. बताइए मैम क्या इशू आ रहा है। So actually, this is my first time I'm doing this work. So it will be of great help, and if you can go through all the process, give just the overview of that process. ओके मैं फर्स्टली आपको पासवर्ड रीसेट करके आपने कर ही लिया होगा लॉगिन, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को लॉक कर रखा है जी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को, ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस सीक्वेंशियल है, तो आपको वन बाय वन सारे टैब्स को विजिट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। देन आफ्टर दिस आपको हर टैब को सेपरेटली लॉक और सेव करते हुए चलना है। फर्स्टली सेव करेंगे, उसे लॉक करेंगे, तभी प्रोसीड करेंगे। अगर आप डायरेक्टली सीधे स्टाफ इंफॉर्मेशन को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स को सेव लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। तो फर्स्टली आप बेसिकली सीक्वेंशियली चलिए कि आप सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, देन ऑफिसर डिटेल्स को सिर्फ वेरीफाई करना है, देन एड्रेस, देन रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। Am I audible, ma'am? Yes sir, you are audible. Yes. आफ्टर दिस मैम लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपको फिक्स करने होंगे, कितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं। जब आप डिपार्टमेंट फिक्स कर लेंगे, एक मिनट मैम, डिपार्टमेंट में आप सिर्फ डिपार्टमेंट फिक्स करेंगे मैम। जैसे आप हम देख रहे हैं कि 13 और 14 नंबर पर आपने प्रोग्राम फिक्स कर दिया है डिपार्टमेंट में, बीएससी मीडिया, बीएससी नॉन मेडिकल। तो मैम यहाँ डिपार्टमेंट का नाम फिक्स करिए, प्रोग्राम मत मेंशन करिए। Yes sir, I'm editing that information because Yes, it was auto filled sir. So I've changed the name of some departments, and these two courses need to be deleted. I'll do it, sir. ओके। आफ्टर दिस मैम आप प्रोग्राम फिक्स कीजिएगा, कितने प्रोग्राम्स हैं आपके। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आफ्टर प्रोग्राम आपको एनरोलमेंट चेक करना है प्रोग्राम वाइज, कि हर प्रोग्राम का ईयर वाइज एनरोलमेंट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर बीए है तो बीए का फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट, सेकंड ईयर एनरोलमेंट, थर्ड ईयर एनरोलमेंट, इंडिविजुअली 3 रोज जनरेट करना है उसके लिए, समझ है ना? में नहीं आ रहा। 3 रो में फिर एक आपका इनरोलमेंट समरी आएंगे। एनरोलमेंट समरी अब की बार हमने ऐड ऑन कर रखी है, लास्ट ईयर जो नहीं थी। आप ओवरऑल एनरोलमेंट चेक कर सकते हैं, आपका रेगुलर, डिस्टेंस, फॉरेन सब कुछ यहाँ आएगा, है ना। कि इंस्टीट्यूशन का टोटल इनरोलमेंट कितना है, इससे आप कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट सारे इनरोलमेंट मैच करा लेंगे। सारे इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट चाहिए कि आप अपना जो एनरोलमेंट है वो कैटेगरी वाइज फिल कीजिएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप हेल्प डेस्क पे मेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनके स्क्रीनशॉट के साथ। और कोई भी क्वेरी आप कभी भी रेज करते हैं तो अपना आईशे कोड और मोबाइल नंबर दोनों चीजें जरूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट हम आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाए। आफ्टर दिस मैम सारा एनरोलमेंट कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट सिर्फ फाइनल ईयर का देना है प्रोग्राम वाइज, है ना। आफ्टर दिस प्लेसमेंट डिटेल्स, इन सब की मैट्रिक्स में सेम है सबकी। तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है वो आउट ऑफ जनरल है। तो अगर जनरल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें से 5 मेल 5 फीमेल है, तो उन 5 मेल 5 फीमेल में से कितने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हैं आपको वो मेंशन करना है। तो ईडब्ल्यूएस का टोटल भी जनरल में ऐड करना है। यहाँ मेंशन भी कर रखा है आउट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट यही है कि आप कैटेगरी वाइज डेटा फिल कीजिएगा। कोई अगर इशू आता है तो आप हमें मेल और कॉल कर सकते हैं। सर आपने पोर्टल तो बहुत अच्छा डेवलप करवाया, बट इसमें सर आपकी ना एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन नहीं है। सपोज मेरे को डेटा फिल करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करना है सर मेरे को, तो आई हैव टू मैनुअली कॉपी ऑल द थिंग्स एंड आई हैव टू पेस्ट ऑल दीस थिंग्स इनटू एक्सेल। सर हम ब्लैंक एक्सेल का ऑप्शन आज शाम तक दे देंगे।
पोर्टल पे। ओह वेरी गुड सर, दैट्स सो गुड सर। मतलब हर उसमें दे दोगे सर आप? नहीं सर, हर उसमें नहीं देंगे, सिंपली हम एक ब्लैंक एक्सेल का फॉर्मेट देंगे आपको, सो दैट आप अपना डेटा कलेक्ट कर पाए और एक सिंगल यूजर एंट्री कर सके। नहीं, वो जो सर आप इंफॉर्मेशन जो एक्सेल का फॉर्मेट दोगे वो स्टूडेंट एनरोलमेंट का दोगे? नहीं staff सर, information ओवरऑल दोगे? पूरे DCF का देंगे हम, अच्छा, पर वो पूरे DCF अपलोड का करने का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इंपोर्ट करने का ऑप्शन ना भी हो सर, वो मैनुअल एंट्री हो जाएगी, बट एटलीस्ट एक्सेल से सर हमें हेल्प हाँ हो सर, जाएगी एक जगह काफी। आपका डेटा फिक्स हो जाएगा, सो दैट कि एक यूजर एंट्री कर सके पूरे के पूरे। हाँ ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू, दैट्स सो गुड। उसके बाद मैम टीचिंग के बाद आपको नॉन टीचिंग करना है। टीचिंग और स्टाफ इंफॉर्मेशन पे आते हैं, आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट। आप सारी एंट्रीज चेक कर लीजिएगा, किसी को डिलीट नहीं करना, किसी भी एंट्री को, उनका स्टेटस अपडेट करना है, जॉब स्टेटस। सर इन केस अगर हमें ऐड करना हो कोई स्टाफ मेंबर, मैम ऊपर बटन दे रखा है, जैसे कि अभी पेज लॉक है क्योंकि आपने हम लोगों ने फिक्स नहीं कर रखा अभी लिस्ट ऑफ जी डिपार्टमेंट, तो हम डिपार्टमेंट को लॉक करते हैं। आप मैम इसे अनलॉक कर लीजिएगा जब आप मॉडिफाई करेंगे, लॉक अनलॉक पेज से। सोनी पड़ेगी नौकरी। मैम अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अदर यूजर सारे। ये मैम बटन दे रखा है ऐड न्यू टीचिंग स्टाफ, ठीक है। और किसी भी स्टाफ को डिलीट किए बिना जॉब स्टेटस उनका अपडेट कर देना। उसके बाद डॉक्टर के पास चल मेरे साथ। सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके सर। अरे वो चल नहीं हो रही तो हम क्या टीना मैम। मूड बनाए करे काम। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम बताइए। सर जी मैम बताइए। सर एक्चुअल में यदि फैकल्टी फैकल्टी नहीं मैम, स्टाफ बोलिए ना। हाँ स्टाफ सर। जी मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर एक्चुअल में यदि स्टाफ एक मिनट मैम, नेहा मैम सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। लॉक अनलॉक वाले पेज पे जाके नीचे एक ऑप्शन आएगा, अंडरटेकिंग नीचे आएगी, ये फाइनल सबमिट का बटन है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार डेटा, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लीजिएगा। और आप रेफरेंस के लिए अपना पीडीएफ में डीसीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका फील्ड डीसीएफ होगा वो पूरा कंप्लीटली आ जाएगा। और स्टाफ इन्फॉर्मेशन हमने सेपरेटली दे रखी है टीआईएफ के अंदर, ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके एंड सर अबाउट स्कॉलरशिप लोन एक्रेडिशन। हाँ मैम, स्कॉलरशिप ये रहा मैम, अगर स्कॉलरशिप है तो आप यस करके सेम मैट्रिक्स को फॉलो कीजिए। एज ऑन डेट 31 दिसंबर 2021 जितने लोगों ने अप्लाई कर रखे जितने बच्चों के लिए, आपको वही मेंशन करना है। सेम फॉर द फेलोशिप, सेम फॉर एजुकेशन लोन एंड एक्रेडिटेशन। ओके सर, ठीक है, या थैंक यू सो मच। वेलकम। Excuse me, sir. This is Ritu from Government College Rador. जी मैम बताइए। सर मेरी क्वेरी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट और कोर्स के है। उसमें हम जब डिपार्टमेंट लॉक करने के बाद कोर्स सिलेक्ट करते हैं, बीकॉम सीएवी एक कोर्स है हमारे पास, कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल, और कॉमर्स का बीकॉम है जर्नल। तो जब हम वो एंट्री करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल की, तो वो डुप्लीकेट एंट्री दिखाता है, हम उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। Sir, can you hear me? Hello, ma'am, am I audible? Yes, sir. मैम लास्ट ईयर जो एंट्री थी यूजर्स ने कर रखी थी, वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में कर रखी थी, तो उन्होंने सारे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करके उन्होंने सारी एंट्री उसके अगेंस्ट कर दी। तो इस बार हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हमने ऑप्शन ही नहीं दिया, सो दैट कि वहां पे जितने भी लोग थे वो सब्जेक्ट्स मेंशन कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर, जो कि गलत है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है और पीएचडी के लिए होती है। ठीक है सर, कोर्स है सर कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल। मैम कोर्स वाइज डेटा नहीं देना है, प्रोग्राम वाइज डेटा फिल करना है। प्रोग्राम जो है उसमें सब कोर्स का कंबाइन कीजिए मैम। वेदर वोकेशनल का एक हमने ड्रॉप डाउन जैसे सर अंडर ग्रेजुएट है, इसमें हमारे पास 4 आर्ट्स का है, कॉमर्स का है और बैचलर
और फोर्थ वन जो है वो बैचलर ऑफ सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल। तो मैम तो ये मुझे वेदर 4 वोकेशनल का एंट्री हमने एक करने ड्रॉप डाउन हैं। दे रखा है, वो चूज कीजिए ना वहां से। हाँ जी सर। मैम प्रोग्राम की आप लिस्टिंग करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन हमने दे रखा है वहाँ पे, वेदर वोकेशनल कोर्स, तो आप उसको यस कीजिए ना वहाँ। सर वो लेता नहीं है, लास्ट टाइम इजीली हो गया लेकिन इस बार नहीं ले रहा है ये। आईसी कोड बताइए मैम आयशा कोड बताइए, हम देखते हैं सेव जी। 60940। 60940 मैम रिपीट कीजिएगा एक बार। 60940। जी मैम बताइए, प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं। हेलो हाँ जी सर, जैसे जी मैम 3 प्रोग्राम लिस्टेड है आपके। हाँ जी। फोर्थ वन है सर, ये जो कॉमर्स का है ना, बीकॉम है, इसमें भी हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल है। मैम कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल इज नॉट ए प्रोग्राम, हम प्रोग्राम की बात करें सब्जेक्ट की नहीं मैम। कंप्यूटर प्रोग्राम आपका बीकॉम ऑनर्स ही है ना। ऑनर्स नहीं है सर, कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल वोकेशनल सब्जेक्ट है सर ये। सब्जेक्ट हम तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोग्राम बाय डेटा ले रहे हैं। मैम ये ड्रॉप डाउन जो दे रखा है ना हमने, वेदर वोकेशनल कोर्स, तो आप यहाँ यस करिए और उसमें मेंशन करिए। इसके बाद यस करने के बाद ये डुप्लीकेट एंट्री लेता है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड नहीं हो पा रहा है। एक मिनट मैम, साथ साथ कर लेते हैं ना। हाँ जी श्योर सर। बीकॉम यहाँ ऑलरेडी इन्होंने ऐड किए हुए हैं। बीकॉम कहाँ से हाँ ये सर यहाँ पर जैसे ये बैचलर ऑफ कॉमर्स ले रहा है ना, तो ये डुप्लीकेट एंट्री शो कर देता है। तो मैम प्रोग्राम आप ऑलरेडी बैचलर ऑफ कॉमर्स ऐड किए हुए हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन में बैचलर ऑफ कॉमर्स की ना है, एक ही है ना मैम। सर वो एक ही है बट वो डिफरेंट कोर्स है, उसमें कंप्यूटर और कॉमर्स के मिक्स सब्जेक्ट हैं सर, वो एक डिफरेंट कोर्स है। मैम हम प्रोग्राम बाय डेटा ले रहे हैं, आप प्रोग्राम बाय डेटा दिए, कोर्स वाइज नहीं। कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, कॉमर्स के 5 किताब पढ़ाते होंगे, तो किताब वाइज डेटा नहीं देना है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। आप प्रोग्राम बीकॉम ऑन बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद अगर कोई प्रोग्राम है तो बताइए। सर बैचलर ऑफ कॉमर्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, आप समझिए इसको कैसे है प्रोग्राम है। ये हमारे पास 4 ही प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल वाला है, इसमें आधे सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं, आधे कंप्यूटर के होते हैं। हम उसकी बात नहीं, प्रोग्राम का नाम क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स ही ना। बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल। वो यूजीसी का आप लिस्ट दे दीजिएगा जो अप्रूव हुआ होगा यूनिवर्सिटी से। हाँ जी श्योर सर, लास्ट टाइम हमने किया है। लास्ट टाइम का कोई रेफरेंस मत दीजिए, यूजीसी का लिस्ट और अपने यूनिवर्सिटी का लिस्ट में जो उन्होंने दिया है प्रोग्राम का नेम, वो आप हमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है सर, आई विल मेल इट। ओके सर, थैंक यू। आई वेट यू। Sir, can I ask something? Yes sir. Sir, sir, my IC code is 60964. सर आपकी साउंड ऑडिबल नहीं आ रही है सर, प्लीज। सर 60964 मेरा आयशा कोड है। जी सर बताइए। सर ये स्टाफ डिटेल्स जो है ये लॉक हो गई है, यहाँ पर ऐड नहीं हो पा रहा है कुछ। सर आपका बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए, सही लॉक है पूरा। सर आपने स्टाफ इंफॉर्मेशन को लॉक किया है खुद से क्या? सर स्टाफ इंफॉर्मेशन लॉक हो गई है सर, गलती से। लॉक हो नहीं गई सर, आप ये बताइए कि जब पहले आपने इनेबल करके उसमें फिल करके फिर दोबारा लॉक किया है, तो से ही लॉक है। किस चीज को सर? सर अभी मैंने इस चीज के बारे में बताया था ना, स्टाफ इंफॉर्मेशन का, अभी लास्ट क्वेरी जो थी
हाँ जी सर। नेहा गर्ग मैम को जब मैं ब्रीफ कर रहा था तब मैंने ये चीज बताई थी सर। सर प्लीज मुझे दोबारा बता देंगे, आई एम सॉरी। थोड़ा सर आयुषी को बताइए अपना एक बार। सर 60964। हेलो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने किसी भी टैब को लॉक नहीं कर रखा, तो मैंने अभी 4 या 5 बार शायद मैं बोल चुका हूँ यही चीज कि जब आप वन गो में जा रहे हैं तो सारे टैब्स को सेव एंड लॉक कीजिए। और जो हमारा लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है जिसका ड्रॉप डाउन हमने यूज कर रखा है स्टाफ इन्फॉर्मेशन के लिए, वो तभी पेज इनेबल होगा जब आप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को सेव एंड लॉक कर देंगे। तो फर्स्टली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेव लॉक करना है, तभी आपका लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट इनेबल होगा। जब आप लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट को सेव लॉक करेंगे तभी आपका स्टाफ इन्फॉर्मेशन इनेबल हुआ। तो बेटर ये है कि आप सीक्वेंशियली चलें स्टेप के अंदर। सर एक बेसिक फंडामेंटल है इसका सर कि आप ऊपर जितने भी टैब है पहले उसको फिल करिए, लॉक करिए, सेव करिए, आगे बढ़िए सर। लॉक ऐसा सर नहीं है कि आप एक बार लॉक कर देंगे तो आपका मेन्यू फिर दोबारा से इनेबल्ड नहीं होगा। आप 100 बार सेव लॉक कर सकते हैं, जितनी बार आप लॉक करेंगे उतनी बार आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉक किया है, यहाँ एक्शन टैब पे जाके जो ग्रीन चेक बॉक्स आ रहा है इसको आप क्लिक कीजिएगा तो फिर दोबारा से पेज इनेबल हो जाएगा। पर वन गो के अंदर आपको सब सारे के सारे टैब्स को लॉक करके चलना पड़ेगा सो दैट आपका नेक्स्ट आप प्रोसीड करें जिस टैब के लिए वो इनेबल्ड हो जाए। ठीक है सर। और इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशन फेस कर रहे हैं पहले वो स्टेप फॉलो करें प्लीज। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेलो जी सर बताइए। सर ये जो हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स है जी बताइए। इसके अंदर ये बाइफर्केशन दे रखा है वेरियस कैटेगरीज में। जी सर। अब जो इसके अंदर डाटा फिल करना है वो जो हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं उन सीटों को जिस कैटेगरी में यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है वो इंफॉर्मेशन फिल करनी है, या जो बच्चे एडमिशन हो गए अब वो चाहे किसी कैटेगरी के थे अब किस किस कैटेगरी के बच्चे कितने एडमिट हुए वो फिल करनी है। जो सर बच्चे एडमिशन हो गए हैं और जो आपके पास कैटेगरी में आए हैं वो फिल करने हैं सर। वो फिल करने हैं। हाँ सर, जैसे कि जनरल कैटेगरी में मान लीजिए 40 बच्चे का एडमिशन हुआ, उसमें 10 ST SC के भी होंगे, OBC के भी होंगे, तो सर वैसे फिल नहीं करना है। जिस कैटेगरी में बच्चे अवेलेबल हैं उसी को फिल करना है। हाँ तो जर्नल में अगर 40 थी तो उसमें से 20 जर्नल के थे, 10 SC के और 10 BC के हाँ थे, तो सर। अब तो यही करना है ना। हाँ सर। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बताइए, एग्जामिनेशन में आ जाइए जी। ये एग्जामिनेशन में दे रखा है कि स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन फाइनल ईयर। जी सर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को फर्स्ट सेम में या फिफ्थ सेम तक किसी सब्जेक्ट में रीअपीयर होती है। जी। अब ये डाटा कौन सा, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का उसका रिजल्ट का डाटा आएगा या सारे सेमेस्टर? इसमें सर उस स्टूडेंट का डेटा फिल करना है जो आपके यहाँ से एग्जाम में पास होके फिर बाहर चले जाएंगे, एकदम फाइनल सबमिशन का देना है सर। तो सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में हमने देखा बच्चा ऑल सब्जेक्ट्स में क्लियर है, लेकिन उसके सेकंड सेमेस्टर में किसी हुई है। अब तो सर क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का मांगा है बच्चे का। नहीं सर, अगर बच्चा का सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर नहीं है तो क्या वो फाइनल एग्जाम में बैठ सकता है? जी हाँ, ऐसा यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोविजन है कि आपका 50% से ज्यादा अगर आपके क्लियर है तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो सकते हैं। सर नेक्स्ट ईयर में नहीं सर, फाइनल एग्जाम में क्या बच्चा बिल्कुल बैठ सकता है। अगर उसके 4 सेमेस्टर में भी रीअपीयर है तो भी वो फाइनल सेमेस्टर में बैठ सकता है। बैठ सकता है और बिना क्लियर किए हुए वो बच्चा फाइनल सेमेस्टर पास करके चला जाएगा। फाइनल सेमेस्टर पास करके नहीं जाएगा, डिग्री उसको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ जो लिख रखा है फाइनल सेमेस्टर में वो क्लियर है। फाइनल सेमेस्टर में जो उसके सब्जेक्ट है
4 सब्जेक्ट वो क्लियर है, लेकिन पीछे के सेमेस्टर में रीअपीयर है। सर उसी बच्चा को देना है जिनको फाइनल एग्जाम में बैठ के डिग्री लेके जाना हो। अगर वो जाने के एलिजिबल नहीं है तो उनको नहीं टेंशन करना। मतलब जिनका टोटल क्लियर है और जिसको डिग्री अवार्डेड है, फाइनल सर्टिफिकेट से हमें कोई लेना देना नहीं, डिग्री अवार्डेड है उसको, है जिसको एग्जाम पास होने के बाद डिग्री अवार्ड हो जाएगा। हाँ, मतलब टोटल सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए सर। बताइए। जैसे हम ये किसी भी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं जी, तो जनरली ये है कि आप पहले स्टेप को सेव करके लॉक कर दो। जी सर। गलती से किसी पिछले स्टेप में कोई इंफॉर्मेशन गलत भरी गई, हाँ, सेव करके आपने लॉक कर दिया, लॉक अनलॉक स्टेटस वाले पेज पे जाइए, वहां से पेज को अनलॉक कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, फिर दोबारा से सेव लॉक कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। फाइनल सबमिशन से पहले सर आप पेज को जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग लॉक अनलॉक कर सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगर फाइनल सबमिशन के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं हमने फाइनल सबमिशन कर दिया है, डेटा में अभी भी हमारी कोई एरर है, तो आप स्टेट नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको प्रोविजन बता देंगे। सर स्टेट नोडल ऑफिसर इसमें ग्रुप में ज्वाइन है? हाँ, यस सर। तो उनका नाम बताएंगे ताकि हो सकता है कभी जरूरत। हेलो जी हाँ जी सर। मैम आपका नाम बता सकते हैं ताकि कभी ऐसा दिक्कत हो तो हम इसमें से आप ग्रुप में ऐड नहीं है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया हुआ है। मैम ग्रुप में ही हूँ मैं। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया हुआ है हमने, आप उसमें ऐड नहीं है। इसके अलावा जी मैं ऐड हूँ उसमें। अच्छा तो उसमें वहीं से तो मैंने ज्वाइन किया इसको आज। जी मतलब लेटर ऑन मान लो जैसे हमने सबमिट कर दिया और उसके बाद हो सकता है कि ग्रुप बंद हो जाए और हमें जरूरत पड़े कि हम अपना रीओपन कराना चाहते हैं, तो किसको कांटेक्ट करें? सर उसके लिए हमारे साइट पे 2 मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाला हुआ है, उस पर आप मेल कर दीजिए और आपको सर इजीली स्टेट नोडल ऑफिसर का नंबर भी मिल जाएगा साइट पे, उनसे मैडम से भी आप कांटेक्ट कर लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर, एनी कोई? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, हो गया, इतना ही था मेरा, मैंने चेक कर लिया था सब और चीजें पहले। ओके सर जी, थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, भारतीय जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हिसार से सर। जी सर बताएं। सर मैं फर्स्ट टाइम डाटा डाल रहा हूँ सर, ऐसे में कोई इशू नहीं है सर, बहुत इजी बनाया गया है पोर्टल। यस सर। सर उसको आप लॉगिन करिए, लॉगिन क्रेडेंशियल बता दिए हैं हमने शुरू में ही। सर हमारे पास ओनली डिप्लोमा प्रोग्राम है सर, एक ही कोई इशू नहीं है सर, आप जितने भी प्रोग्राम है उसको आप ऑन प्रोसेस फिल करिए, उसमें अगर कोई इशू हो आपको पोर्टल पे 2 नंबर मिल जाएंगे सर, उसमें आप कॉल कर लीजिएगा या ईमेल कर लीजिएगा या एसएनओ मेम के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको कोई इशू होगे आपको हम रिजॉल्व करेंगे, यदि अभी कोई इशू है तो प्लीज शेयर करिए, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे सर। नहीं सर, मैंने स्टार्ट किया, बेसिक डिटेल मेरी कंप्लीट हो गई है सर, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा सर कोई इशू आएगा, अगर कुछ होता है तो मैं आपको। सर एक जनरल फॉर्म है जो आपने बहुत बार पहले भरे होंगे, जी उसी सर, तरह से सैंपल है सर। जी सर, ऑप्शनली है सर, सारा कुछ यस सर, फॉलो करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुजीत बोल रहा हूँ सर, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव से। जी सर बताएं सर। सर जो डिटेल्स ऑफ फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट है और डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स, ये पेज ऑलरेडी लॉक्ड है सर, वो आप पहले बेसिक फिल करिए, बाद अनलॉक आ जाएंगे सर। पहले बेसिक मैंने फिल कर लिया है। फिल करिए, सेव करिए, लॉक करिए, अब प्रत्येक स्टेप को फॉलो करिए सर, कोई इशू नहीं आएंगे सर। मैंने फैकल्टी डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम तक का लॉक कर दिया है, उसके आगे का स्टेप है फैकल्टी डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी प्रोग्राम्स का, वो ऑलरेडी लॉक्ड है उसमें। एक मिनट सर, ऐसे कोड बताइए सर।
क्या सर? कोड इंस्टीट्यूशन का क्या है सर? Sir, faculty and department, then details of program. ये पेज already logged आ रहा, वो log से। ये दोनों लॉक आ रहा है इनका। हाँ, लो। आपका फैकल्टी डिपार्टमेंट लॉक आ रहा है, तो आपने लॉक कर रखा है ना ये? Yes sir. जी, तो इसे अनलॉक कर लीजिए अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो। लिस्ट ऑफ फैकल्टी, देखिए आपने फैकल्टी लॉक कर रखा है, डिपार्टमेंट लॉक नहीं कर रखा। मैम आप देख पा रहे हैं? देख पा रहा हूँ। जी जी जी, देखिए लिस्ट ऑफ फैकल्टी जो आपने लॉक कर रखा है, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपका अनलॉक है। हाँ, ये 21-22 का है ना सर लॉक लॉक, बट जब हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं उसमें वहाँ दिखा रहा है, लॉक दिखा रहा है वहाँ पे। कहाँ पे सर लॉक दिखा रहा है? जी जैसे हम प्रोग्राम पे लॉक दिख रहा है। सर प्रोग्राम तो लॉक्ड होगा ही ना, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी के केस के अंदर प्रोग्राम का लिंकेज फैकल्टी डिपार्टमेंट से है। तो जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे आपकी लिस्ट ऑफ फैकल्टी एंड लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तब तक प्रोग्राम इनेबल्ड नहीं होगा। पर अगर हम कॉरिडोर स्टैंडअलोन की बात करते हैं तो उनका डिपार्टमेंट से लिंकेज नहीं है। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने फैकल्टी तो लॉक कर दिया, बट आपने डिपार्टमेंट फिक्स नहीं किए, तो आपको डिपार्टमेंट तो फिक्स करने पड़ेंगे ना। जो आप इसे सेव लॉक कीजिएगा तो आपका जो प्रोग्राम है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है, वो इनेबल हो जाएगा। ओके सर। देखिए आपके 222 प्रोग्राम्स हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिए वन गो में। यस सर, 222 हाँ। हाँ सर, अब ओपन हो गया ये। सर और कोई क्वेरी? सर माय लास्ट क्वेरी। थैंक यू सर, हो गया। जी सर। सर मेरे को थोड़ा सा एक बार आप डिपार्टमेंट और प्रोग्राम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर प्लीज? सर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट सर। हाँ, प्रोग्राम्स तो सर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने भी हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में 4 प्रोग्राम भी रन हो सकते हैं। तो सर बेसिकली मेरे पास जैसे 5 डिपार्टमेंट है मेरे पास, या मेरे जी। पास 8 डिपार्टमेंट है सर मेरे पास कॉलेज में। जी। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरे पास 8 प्रोग्राम्स ही रन कर रहे हैं मेरे पास। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप एक बार बताएंगे? सर वही S1058। S1058 जी सर। सर एक चीज और देख लीजिएगा, आप डिपार्टमेंट जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली कॉलेज और स्टैंड अलोन में सर कोई ऑथराइज डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। जितने सब्जेक्ट हैं उनको लोग डिपार्टमेंट मान लेते हैं सर, ऐसा नहीं ना है सर? हेलो। जी सर। हेलो। 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 हाँ सर, सर नमस्कार सर। एक मिनट सर, अभी क्वेरी चल रही है एक सर की, इसके बाद लेते हैं ना। प्लीज प्लीज।
अच्छा अभी बोलते हैं इसको। हेलो, हाँ जी सर। जी सर, अभी पोर्टल थोड़ा सा स्लो है। आप एक काम कोई कीजिए। बात नहीं सर, कोई बात जी जी सर, जी अभी सर। ना हेल्प डेस्क पे आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे। इशू सर आपका डिपार्टमेंट से मैं रिलेटेड ही करता था हूँ ना? सर। जी हाँ जी सर। सर मेरा पता कंफ्यूजन मेरा वही है सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जैसे मेरे पास हाँ 2 ब्रांचेस चल रही हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी जी मेरे पास 2 ब्रांचेस चल रही हैं। मेरे पास सर स्टाफ अलग अलग है, स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेपरेट सर। हाँ तो वही सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब कैसे मैं फिर उनको दोनों को क्लब कर दूं क्या सर फिर मैं? सर आप प्रोग्राम वाइज डेटा फिल करिए सर। सर प्रोग्राम वाइज डेटा मैं फिल कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट को कैसे मैं मतलब डिपार्टमेंट सर, समझ नहीं पा रहा डिपार्टमेंट सर मैं कहाँ सर यूज हो रहा है डिपार्टमेंट सर और प्रोग्राम के अंदर? प्रोग्राम आप का। मुझे ये तो बताइए। प्रोग्राम के अंदर डिपार्टमेंट हम मेंशन कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे आप एक मेरा खुल रहा है सर हाँ सर हम दे S1058, मैंने सर उसमें डिपार्टमेंट एक जो है ना मिनट अलग सर, अलग कर लिए मैंने डिपार्टमेंट उसमें। आप ना अलग किए हैं सर। हाँ तो आप अलग हाँ जी किए तो सर। आपका यस अलग सर। किया हुआ कोई ऑथराइज डिपार्टमेंट नहीं है ना सर। प्रोग्राम आपका ना मेन, जहां से आप अफिलिएशन लिए हैं, प्रोग्राम का लिए हैं ना, कि डिपार्टमेंट का अफिलिएशन लिए हैं, हाँ जी इस सर। डिपार्टमेंट में ही ये होना जी चाहिए। तो सर प्रोग्राम पे फोकस करिए, प्रोग्राम फिल करिए, उस प्रोग्राम में सर प्रोग्राम मेरा टोटल जितने बच्चे उसको कंबाइंड करिए। ठीक है सर, मेरा जो प्रोग्राम है दोनों प्रोग्राम के कोड भी मेरे अलग अलग है। मेरे को HSBT से एफिलिएशन है सर हमारी, तो वहां से सर जो प्रोग्राम से कोड मिले हैं वो सर भी अलग अलग हम हैं सर। उस प्रोग्राम के कोड के अकॉर्डिंग डेटा नहीं ले रहे हैं सर, हम आईसे के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप ले रहे फिर हैं। तो आईसे के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप डेटा दीजिए। इसमें तो हम नहीं फिल कर रहे हैं कि आपने जो एफिलिएशन लिया है जो प्रोग्राम का, उसके कोड के अकॉर्डिंग डेटा फिल करिए। ठीक है, तो मतलब सर उसके अकॉर्डिंग मेरे पास डिपार्टमेंट कम हो जाते हैं ना सर फिर? वैसे मेरे पास 8 ब्रांचेस हैं, सर तो अगर आपके मैं पास ब्रांचेस को क्लब कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 6 ब्रांचेस रह जाएंगी सर मेरे पास फिर। सर कितना आपके पास सर स्टूडेंट्स 60% से ज्यादा नंबर नहीं पेपर देते। इंस्टीट्यूशन का हम कितना डेटा ले स्टूडेंट रहे हैं कि 60%? आपके इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस कोर्स में ठीक है कितने सर। बच्चे पढ़ते हैं, वो सर फिल करना है सर। ठीक है सर, फिर वो डिपार्टमेंट फिर सर हम हम क्लब इसलिए यूज मतलब कर रहे हैं कि सिर्फ आप स्टाफ इंफॉर्मेशन को करेक्टली फिल कर पाए। बेसिकली यही ठीक मोटिव है। है। तो सर मतलब मेरे को अब दोनों डिपार्टमेंट्स को मेरे को मर्ज कर देना है फिर अपने, हाँ बिल्कुल जी सर। सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी, उन दोनों को मेरे को मर्ज करके फिर उसके अकॉर्डिंगली डाटा देना है मेरे को। जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ सर, एक क्वेरी है जी बताइए। कि सर स्टूडेंट इनरोलमेंट है जनरल कैटेगरी EWS शेड्यूल कास्ट ST OBC। Excuse me, sir. मैम एक तो सर इसमें जैसे एक ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी होती है, उसको क्या जनरल कैटेगरी के अंदर अंदर ही कंसिडर करना है? ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी कौन सी होती है? सर कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं बच्चे, जी तो एक अदर स्टेट के होते हैं वो ऑल इंडिया। अदर स्टेट या फिर जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के अंदर जाते हैं क्या? उनको सर जनरल कैटेगरी हम बेसिकली ST SC OBC अदर माइनॉरिटी ही ले रहे हैं ना। तो आपके यहाँ के बच्चे जो भी जिस कैटेगरी में आए हैं उसको फिल करिए सर। वो किस सर, कैटेगरी से जैसे अलाई हमारे- करते हैं सर, आप वो मेंशन कीजिए ना वहाँ। सर जैसे कोई SC का स्टूडेंट है, उसका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ तो उसको जनरल माना जाएगा या SC नहीं माना सर, जाएगा? उसको SC ही मानेंगे। हम यहाँ ये SC? पूछ रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में कितने SC बच्चे हैं। अच्छा ठीक हेलो है सर। सर हमें सर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है सर। सर हमने लॉगिन के लिए 2 बार इशू बता चुके हैं सर, एक बार लास्ट में हम आपको फिर से शेयर कर देंगे सर। नहीं सर, कस्टमाइज प्रॉब्लम है सर इसमें। मैं फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूँ ना सर, जब तो मोबाइल नंबर जो दे रखे है ना वो
अवेलेबल नहीं है। हम ये पता नहीं किसका है, ये तो मेरे से पहले वाले सर आप अपने स्टेट नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिएगा इसके लिए आफ्टर दिस मीटिंग, वो आपको सोल्यूशन प्रॉपर दे पाएंगे, है ना। नहीं, मैंने सर जैसे जीमेल तो मैंने डाल दी, उसमें ओटीपी आ गया, हमने वेरीफाई कर दिया सर। जी जी जी। मोबाइल नंबर भी वो कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अब वो मोबाइल नंबर किसके पे गया ये सर ये नहीं पता। लास्ट में 666 है। मैं आपको सर ऐसे कोड बताता हूँ, अगर आप देख सकें तो। सर इस मीटिंग के बाद आप अपने स्टेट नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे देंगे इसके लिए। ओके सर। ठीक सर एक बार लॉगिन प्रोसेस को फिर से बता दीजिए। फिर से बता दो। ठीक है सर। सर गुड मॉर्निंग। एक मिनट सर। ये देखिए सर, ये लॉगिन का जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूशनल यूजर जब आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। नीचे एंकर टैग पे लिंक दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड का, तो यहाँ पे अपनी यूजर आईडी मेंशन कीजिए, अपना आईशे कोड मेंशन कीजिए, अपना वेरिफिकेशन कोड मेंशन कीजिए। ये यूजर वेरीफाई के लिए है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब तीनों चीजें आप फिल कर लेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां आपको ओटीपी मिलेगा। आप पहले ओटीपी सेंड करेंगे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है जानना कि जो रजिस्टर्ड यूजर आईडी आप यूज कर रहे हैं उस पे कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तभी आपका ओटीपी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। वो आपके पास होना भी चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा सर पासवर्ड रीसेट का, जो आपका अपडेटेड पासवर्ड है आप सेट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। इसके बाद ठीक है सर। सर ये फॉरगेट करना जरूरी है पासवर्ड, हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड पता है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम अगर आप 21-22 के लिए जा रहे हैं, ये सर हमारी पासवर्ड पॉलिसी चेंज हो गई है लास्ट ईयर से, इसलिए हम अपडेट करवा रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो एक बार आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर विजिट में हर बार करना पड़ेगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम एक नया प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं, बीएड एक तो होती है जनरल, बीएड स्पेशल, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन सिंपल जी जी, और एक है प्रोग्राम दूसरा बीएड स्पेशल एजुकेशन जी। वो प्रोग्राम तो इसमें शो नहीं करता, या बीएड जनरल में ही डालें उसको? तो फिर सारा एक साथ ही डालेंगे सर, बीएड में ही डालेंगे ना, प्रोग्राम तो बीएड ही है ना। हाँ बस उसका जो एफिलिएटेड ईयर वाइज तो सर आपका एनरोलमेंट होगा ना, आप एनरोलमेंट बढ़ा देना, प्रोग्राम तो वही है। जी, जो उसकी अप्रूव्ड अथॉरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी आरसीआई। जी ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। जी सर, जी सर बताइए। हाँ सर, मेरी एक क्वेरीज थी। एक्चुअली मेरा जो आईडी कोड है वो 10587 है। 10587 पहले हाँ सर बताइए। हाँ 10587 पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से। अब DCM आपके लिए लेटर एप्लीकेबल था कि नहीं था? जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था तो जो एनरोलमेंट था वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर शो हो रहा था कि आपके कॉलेज के अंडर शो हो रहा था? नहीं, कॉलेज के अंडर शो रहा था सर 10587। दैट मींस कि DCM आप खुद सेपरेटली फिल कर रहे थे? हाँ सेपरेटली फिल कर रहे थे सर। जी सर बताइए अब। लेकिन अब ये है जो अब ये इंस्टीट्यूट बन गया है, तो यूनिवर्सिटी में गवर्नर हाउस से हमारे पास ऑर्डर है, अब वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट एन इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सर अब भी ये जो है ना कोड अगर स्टैंड कर रहा है, तो फिर हमें किस कोड के, यूनिवर्सिटी कोड के अगेंस्ट डाटा देना पड़ेगा या इसी कोड पे देना? इसके रिगार्ड सर आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लीजिए और ये DCM को अनेबल करवा के उनको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डेटा फिल करना होगा सर। ये सर आपका आईशे कोड को बंद कर देंगे और आप उनके अकॉर्डिंग डेटा फिल कीजिएगा। और ये सर आपका इंटरनल है, आपकी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर लीजिए एक बार। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी चलो, वो तो कमेटी बन गई। नहीं सर, मैसेज उस पे आ गया ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी सारे पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपना नया कोर्स ऐड करना है, हाँ जी, तो वो जो नया कोर्स ऐड करने के लिए कोई लेटर हमें जरूरी है कि आपको मेल करनी पड़ेगी? अगर हम खुद बिना लेटर सेंड के भी ऐड कर सकते हैं? लेटर तो मेल करना पड़ेगा, तभी तो प्रोग्राम ऐड होगा कि किस ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप कैटेगरी और ब्रॉड डिसिप्लिन ग्रुप नेम में वो लाई कर रहा है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना उसकी। ओके ठीक है सर। ठीक है जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? एक्सक्यूज मी सर। सर वो मेल आईडी किस पे करना होगा सर? हेलो। aisha-helpdesk@nic.in
portal.aisha-helpdesk@nic.in। ठीक है सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला से बोल रही हूँ मैं, मीनाक्षी शर्मा। जसवीर मैम अपना माइक सर जैसे जसवीर मैम, जसवीर कौर जी। एक मिनट सर, एक मिनट। जी मैम बताइए। सर कॉलेज के अंदर कोई डिपार्टमेंट ऑफिशियली नहीं होता है, तो क्या हमें वो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर? नहीं, जरूरी नहीं है मैम। अगर नहीं है तो नो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके आप सिंपली सेव लॉग करके अपना प्रोग्राम डाल दीजिए। ओके देन सर, एक अनदर इशू है सर कि जो फैकल्टी का डेटा हमने लास्ट ईयर अपलोड किया था, स्टाफ का। हाँ बताइए। हाँ जी सॉरी, हाँ। स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ फॉर जी, एग्जांपल। जी, तो जी। सर जैसे उनकी जो भी डेटा हमने लास्ट ईयर सेव किया है वो चेंज कैसे हो गया? उनकी लाइक डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो डेट्स हैं वो इनकरेक्ट आ रही हैं। मतलब मैम हम जो सीधा लास्ट उसको ईयर फिल ऐसा करा नहीं। होगा वही होगा ना मैम। आपने लास्ट ईयर का नो डीसी सर, डाउनलोड मेरे किया पास था फिल प्रिंटेड करने के फॉर्म बाद? है। हाँ जी मैंने प्रिंट फॉर्म में मेरे पास करेक्ट डेट्स है, बट जो अब डेट शो कर रहा है वेब डीसीएफ के अंदर वो डिफरेंट डेट्स हैं, और इसीलिए मैं उसको सीधा सेव नहीं कर सकती हूँ अगर स्टाफ इज सेम। ठीक है मैम, एक बार मैं आपको ना अपना नंबर शेयर करता हूँ, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसका। ओके थैंक ओके मैम। यू। थैंक यू सर। बिल तो अलग अलग है ना? अलग अलग हम इकट्ठे ले सकते हैं ना, जाके जिस हिसाब से बिल है ना, अलग अलग डेट के बिल है ना, तो वो प्लीज सर माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए, जिसकी वेरिएंट सिर्फ वही है। सर ये नहीं है, ये आप बताएंगे? अप्रैल 2020 से 8 2021। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक स्पेशल सब्जेक्ट है। देखिए सर, उसमें एक सुन लीजिए, एक मिनट जो क्वेरी है वो सुन लीजिए। हाँ। तो कंप्यूटर जो है वो वोकेशनल में काउंट होता है, जनरल वोकेशनल में नहीं। तो अब जो हम डाटा देंगे वो बीकॉम में वोकेशनल शो करें या जनरल शो करें? सर इसमें सिर्फ आप बीकॉम का डेटा दीजिए, और अगर वोकेशनल भी है तो वहां पर ऑप्शन आता है कि क्या ये कोर्स वोकेशनल है, यस या नो, तो वहां पर यस करके सारे डेटा कंबाइन करके फिल करें। नहीं सर, फिर वो जब हम कंबाइंड करेंगे सर, लिसन टू मी, जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास तो हाँ सर मिक्स हो गया। हम आपसे उससे ज्यादा हम नहीं पूछ रहे हैं सर, आप उतना ही फिल करिए ना जितना मांगा जा रहा है सर। नहीं सर, कंफ्यूजन अभी भी रह गया। जैसे हम कंबाइंड कर दिया, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ वोकेशनल है जिनके पास, मान लो 70 बच्चे होगी तो हम आपसे पूछेंगे, तब आप बाइफरकेशन बता दीजिएगा। अभी सर आप कंबाइन दीजिए ना। कंबाइन करके जनरल शो कर दें, उनको वोकेशनल ना करें। नहीं, कंबाइन करके उसमें वोकेशनल का ऑप्शन यस कर दीजिए। तो वो फिर इट मींस सम स्टूडेंट्स आर ऑफ वोकेशनल, सम स्टूडेंट्स आर ऑफ जनरल, लेकिन हम वोकेशनल शो करें उसको। हाँ वोकेशनल शो करिए सर। ओके ओके। और सर जो एडमिशन डाटा हमें जुलाई अगस्त 21 का डालना है ना सर? सर वो 31 दिसंबर 2021 तक का जितने इनरोलमेंट है वो आपको फिल करना है सर। या एकेडमिक ईयर 21-22 में जो इनरोलमेंट आपके एडमिशन हुए वो फिल करना है सर। एडमिशन तो 2 बार हो गए ना सर, दिसंबर 22 तक हम जाएंगे तो 21 में एडमिशन हुआ जुलाई अगस्त में, और फिर 22 में भी एडमिशन हो चुका है, तो हमें एडमिशन डाटा कौन सा? 22 में एडमिशन क्या 21-22 एकेडमिक ईयर का हुआ है? नहीं सर, 22-23 का। तो सर हम 22-23 का जुलाई 22-23 का सर अगले साल क्या भरेंगे फिर आप?
ठीक ठीक है सर, वही नकले है और रिजल्ट हमारा फाइनल ईयर का हाँ आएगा। सर, सिर्फ फाइनल ईयर का जो इंस्टीट्यूशन छोड़ के जा रहे हैं बच्चे। ठीक सर, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सर। Am I audible? यस सर। हाँ जी सर मुझे कंफर्म ये करना है, जैसे अभी तक हमारे AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज हैं MBA MCA, हम वो एशे में अपलोड करते थे, लेकिन 6 कोर्सेज हम अपलोड नहीं करते थे। मे बी किसी BBA BCA अदर कोर्सेज जो हैं हम सिर्फ एक दिखाते थे, हमारी गवर्निंग मतलब हमारी रेगुलेटरी बॉडी AICTE है तो MBA MC डाल देते हैं हम। जी जी। तो अब बाकी कोर्सेज में उसमें ऐड कर देना सर। हाँ सर, सारे सर कर दीजिए, सारे प्रोग्राम ऐड करिए, सब जितने इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट है। राइट, ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात सर, जैसे हम MBA में हमारे पास 2 साल का कोर्स है, तो दोनों साल के बच्चे अपलोड करने हैं? हाँ सर, MBA जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना है, तो वहाँ पर आप 2 ईयर मेंशन करेंगे। हाँ वो हम वैसे हम डालते हैं, क्रॉस चेक कर रहा था, वैसे तो हम 2 साल डालते हैं, फर्स्ट ईयर हाँ सेकंड ईयर सर, डालते हैं। और जब डेटा फिल करेंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन आएगा कि आप फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हैं कि सेकंड ईयर का फिल राइट कर सर, रहे हैं। राइट सर। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने इससे हमारा बहुत हेल्प हुई है। हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, लॉगिन भी हो गया है हमारा, और हम अब टाइमली अपलोड भी कर देंगे सर। और सर कोशिश कीजिए कि सर इस माह में कंप्लीट कर लें सर। या श्योर सर, श्योर, इससे टाइमली सबमिट हो जाएगा सर। और आपके इस सेशन में बहुत हेल्प हो गई हमें सर, और हम लॉगिन के लिए तंग हो रहे थे ना। हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर दें प्लीज हमें। जी सर, हेल्पलाइन नंबर आ जाएंगे आज शाम तक हेल्पलाइन नंबर आ जाएंगे सर पोर्टल पे। सर। मैम से भी रिक्वेस्ट है कि मैडम हमारा ये मेरा नंबर भी प्लीज ऐड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई क्वेरी होती है तो मैडम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी यस यस सर, प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। काम एक को लेटर दे देना उसमें बैंक में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, कई बार दे चुके। Any other query from any institution related to any of the modules? Certificate, login, DCF download, anything? कॉपी में एंट्री करा के दे देना, कॉपी में पड़ेगा, तीनों होगी ना। तो पिछले वाले भी दे देना, जब मैं छुट्टी पे था ना, ये भी आपका होगी कॉपी ना कुछ। सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सर। Everybody please mute their mic. Good morning, sir. I'm audible, sir. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ 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 सर, बिल्कुल आप आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक क्वेरी थी मेरी कि आपका डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम है, डिटेल्स डिपार्टमेंट डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम। जी जी सर। अब मैंने अपना लॉगिन किया तो डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट में मेरी जो 4 ब्रांचेस मुझे अलॉटेड है मेरे अप्रूविंग बॉडी से, एफिलिएटिंग बॉडी से, उसकी डिटेल्स। ठीक सर। डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम में जैसे लाइक अभी अगर मेरी जो बेसिक डिसिप्लिन ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ रहा है, लेकिन हमारे ब्रांच का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जी, तो उसमें कोई फर्क तो नहीं होगा क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। या डिपार्टमेंट का आपको नाम लग रहा है कि चेंज है तो उसको एडिट कर लीजिए। अच्छा नहीं, जो उसमें प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक अंडरग्रेजुएट लेवल है, नेम ऑफ द प्रोग्राम बीटेक। हाँ सर, तो डिसिप्लिन प्रोग्राम ऑफर वाइज इंस्टीट्यूशन में डिपार्टमेंट्स का कोई लिंक नहीं है सर। नहीं मैं डिपार्टमेंट का लिंक नहीं, नाम जो अगर आता है उसमें ब्रांचेस का तो आता है ना, कौन कौन सी ब्रांच है आपके पास, कौन सी? नहीं सर, उसका कोई नहीं आता है सर। वो आता है कि जो इंस्टीट्यूशन जैसे आपका बीटेक है तो इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग में किस सब है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, उसमें 18 ब्रांचेज है। जैसे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया एक, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग है। तो लेकिन इसमें जब हम क्लिक करते हैं ना उसके ऊपर जो टैब्स हैं हमारे, उसके उस टैब में कंप्यूटर साइंस नहीं आता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है ओनली। ठीक है सर, कंप्यूटर साइंस जो आते हैं ना वो या तो आईटी में आते हैं या फिर सर अदर इंजीनियरिंग में उसका ऑप्शन डाल दीजिए।
अदर इंजीनियरिंग में डाल के जब DCF सबमिट करेंगे तो जहाँ पर रेफरेंस आएगा वहाँ पर दे दीजिएगा कि ये कंप्यूटर साइंस भी मेरा है जो इसमें नहीं आ रहा है। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। आए हुए भी सारे आए ना सर, मैं अभी जल्दी जाऊंगा सर, लगता काम था, फिर कर लेंगे। प्रेजेंटेशन तो सर मैं मंडे को दूंगा, तो मैं 3-4 दिन छुट्टी करूंगा सर। आज कौन देगा फिर? आज दीपक है सर। करना सबका। अच्छा, तो एक बार यहाँ से फ्री होने के बाद ही आइडिया आएगा कब क्या होगा। बोल देता हूँ, हाँ उनको बोल देना। जितने भी यूजर्स हैं हमारे, अगर किसी को भी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है कि कोई प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जो यूनिवर्सिटी का आपका जो अफिलिएशन मिला हुआ है उसके साथ में, कि हमारे प्रोग्राम्स को ऐड करा दीजिए। सर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ लिस्ट वगैरह नहीं है वहाँ से इशू, मतलब क्लैरिफाई ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा कुछ है? मैम यूजीसी की लिस्ट जो होती है वहीं से हो सकता है क्लैरिफाई, क्योंकि मोस्टली क्वेरीज मैंने ये देखा है प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो क्वेरीज रिपीट हो रही है हर किसी की। ठीक है मैम, तो आप सारे इंस्टीट्यूशंस की क्वेरी एक बार ले लीजिए, कंबाइन करके आप हमें एक कंसोलिडेटेड मेल कीजिए कि ये प्रोग्राम्स हैं जो आप हमें ऐड करने हैं। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है और अल्टीमेटली इतनी सारी इंस्टीट्यूशन है, फिर तो बेसिकली बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अभी तो लोगों ने स्टार्ट किया फिल करना। मैम बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमें भेजिएगा प्रोग्राम विद द नेम ऑफ अ प्रोग्राम, ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कैटेगरी एंड ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप नेम। और चैट बॉक्स की सारी क्वेरी सॉल्व हो गई? चैट बॉक्स हम चेक कर देते हैं। ओके सर। सर एक क्वेरी मुझे चाहिए। सर क्या आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, बताइए। सर हमारा कोड 10768 है, DN कॉलेज कुरुक्षेत्र। सर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एक इंक्वायरी लेनी थी। आपने लास्ट डेट बताया 31 दिसंबर 21, तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो 19-20 की ही होगी ना? 20-21 की मैम। मैम 2020 21-22 का आप डेटा ले रहे हैं ना? हेलो हेलो जी मैम। हाँ जी सर। मैम आपको इन्फॉर्मेशन तो 21-22 की देनी है ना, स्कॉलरशिप की? यस मैम। एज ऑन डेट जो है आपका 31 दिसंबर 2021। सर 31 दिसंबर तक तो सिर्फ हम एप्लीकेशंस लेते हैं, अप्रूवल तो नहीं हो पाता स्कॉलरशिप्स का। तो मैम लास्ट ईयर आपने कैसे डेटा फिल किया था? लास्ट ईयर हमने उससे पीछे वाले साल का दिया था, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम ठीक है मैम, तो लास्ट ईयर का देते हैं। बैक ईयर का दे दीजिए, जिनका अप्रूवल हुआ है नेक्स्ट का नेक्स्ट ईयर में दीजिएगा 22-23 में। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस ये कंफर्म ही करना था सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, कौन कौन प्रेजेंट है? 25 to 11 चली गई। तो 15 कैसे मैम फिर वाइंड अप करते हैं मीटिंग, ऑलमोस्ट सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। सर थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट। मुझे लगता है सबकी क्वेरीज आज के दिन तो दूर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट फिर 9 तारीख को फिर दोबारा से। बाकी में प्रोग्राम्स का आप कंसोलिडेटेड एक ईमेल बना के मैं भेज दीजिएगा विथ लिस्ट। ठीक है, लीव द मीटिंग सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।